What is social activities? Which type of social activities we used to do lots of camps earlier. How it started? And definitely as a doctor, it's our prime duty also to do some social activities for the welfare of the society. Sir, you after complete your education, just you started your clinic or have? No, it's almost like in 1995 I finished my post graduation in ophthalmology. Then I worked for 3 years in a private in a institute. So from childhood you wanted to become eye specialist or something else? Basically it was of interest. It was my interest and it was a motivation from my family members to achieve my goal. Nowadays, I think about 75% people are facing eye problems. Ji. Then what is the reason? If you go back 10 years back, if you go back to in that era, we didn't have. Most of us were spending more time in the outdoor activity. हम बाहर ज़्यादा outdoor activity रहता था. आँख हमारी एज के साथ साथ बुद्धि होती रहती है. Proper ध्यान देते हैं तो थोड़ा I think you can extend the weakness of the eye. नमस्कार, हैबिट्स टीवी में आपका स्वागत है. मैं हूँ शशि राय. दरअसल इंसान जन्म से ही घुमक्कड़ होता है. अपनी आंखों से दुनिया देखना चाहता है. नदियां, पहाड़, झरने, समंदर सबको अपनी आंखों में बसा लेना चाहता है, क्योंकि भगवान का दिया हुआ ये जो हमारी आंख है एक ऐसा कैमरा है जिसकी तुलना इंसान द्वारा बनाए गए बड़े बड़े और बहुत महंगे कैमरे भी नहीं कर सकते. इसलिए जरूरत है कि हम समय समय पर इसकी देखभाल किसी एक्सपर्ट्स की सलाह पर करते रहें. इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश अग्रवाल, जो एक आई स्पेशलिस्ट है. आइए हम इनसे जानते हैं अपनी आंखों की सुरक्षा कैसे करें. वेलकम टू हैबिट्स टीवी. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल, could you tell me something about yourself? I'm Dr. Rajesh Agarwal. I'm an eye surgeon. My specialty is into cataract and LASIK eye surgery, and I consult at Asharfi Devi Eye Clinic, Kachiguda and Old City, with my sister concern of Clear Vision, genuine eyewear, optical showrooms, and most of the time I am into my private practice, along with some time spending giving some awareness for the social activities and etc. What is social activities? Which type of social activities? Social activities we used to do lots of camps earlier. Okay. And हम लोग पहले काफी schools में जाते थे. Like we used to have screening program in the schools. That, and we had some camps in the IT professional areas, offices also. It's like not like screening exactly in the IT professional. It was like just a short awareness program. We used to guide them with the precautions what they can take during their professional life. Okay. Is it free? You can. Yeah. That's most of the time it's a social services what we give back to the society. How it started that I should do some social work also for. Yeah. Or as a doctor, you feel from inside that I should. And definitely, as a doctor, it's our prime duty also to do some social activities for the welfare of the society. But I had my interest is also towards social activities. So basically, I'm a different person. मुझे लगता है कि I should give help out to the society in whatever way I can, especially so at least in professional way I can help them out so that they can take care of their eyes, as you said, which are the most important organ of the body. Yes. Every organ of the body is very important, definitely. Yes, but eye is more important. Exactly. Eyes, they tell it's a window to the world. Yes. So, and of late we have seen people have been using their eyes. Lots of work is being done on the eyes actually. Yes. So eyes are very minor, like the muscles in the eye are very tiny organs which undergo lots of stress during the long hours of their working conditions. So it's a prime duty to take care of our eyes. Sir, you after complete your education, just you started your clinic or have what's on it? No, it's almost like in 1995 I finished my post graduation in ophthalmology. Then I worked for 3 years in a private in a institute where we had gone under training of surgical exposure and all the camps, all these things. And after, in around 2000, I started my private practice. After 2000, in the year 2000, we started my private practice. Okay. And it's almost like 24-25 years. We are in the 25th year of private practice actually. Okay. Where is your clinic?
We have two centers. One is at Kachigoda, and another one is in the old city. Like it's just in the High Court, near to the High Court area. Okay. Fine, ma'am. So, and we have surgical centers. We have common surgical centers tie up with Swarup Eye Center, where I do my cataract surgeries. And High Court is like near Bahadurpura, no? not exactly Bahadurpura. Yeah, it's on the way to Bahadurpura. City Yeah. College. Exactly. And like my surgical interest is into cataract and LASIK surgery. So we have tie up with the cataract centers and surgery center, Swarup Eye Center, where I'm being operating since last 23 years. And we have tie up with Laser Vision LASIK Center. And off late we have tied up with the two more centers where we can provide better services to the patients, what new technology they have with them. So from childhood you wanted to become eye specialist or something else? Yeah, it's like it's basically it was of interest. It was my interest, and it was a motivation from my family members, my elders, my family members to achieve my goal. And later on, of my interest, I chose the subject of ophthalmology. The thing continued. Yeah. Nowadays, I think about 75% people are facing eye problems. Ji. Then what is the reason? It's basically if you go back 10 years back, if you go back to in that era, we didn't have, most of us were spending more time in the outdoor activity. हम बाहर ज़्यादा outdoor activity रहता था. Then ज़्यादा time हम phone पे spend नहीं करते थे, और ज़्यादा time हम TV, वो time पे it was just like Doordarshan TV. Hardly some time we used to spend on the TV, but most of the time we used to spend outdoor. Even after dinner, most of them, their families used to have discussions, or उनके friend circle के साथ they used to sit outside their house and have good chit chat रहता था. So, but of late, because of the changes in the things, there's a great revolution that everyone is dependent on computer. Computer. So lots of screen time is happening. Lots of the trend has completely shifted from outdoor activity to the indoor activity. तो पहले outdoor में हमको pollution, dust over expose ज़्यादा होता था, but now indoor में क्या हो रहा है? We are spending more time indoor, and that's having the effect on the eyes, on our body, on general health also. अभी तो छोटे बच्चों से परेशान है सर कि मोबाइल छोड़ते ही नहीं है, टीवी तो छोड़िए, मोबाइल ही नहीं छोड़ते. जी. छोटे बच्चों को भी मोबाइल चाहिए. जी. तो और ये नहीं, मतलब हमारी आपकी प्रॉब्लम नहीं है, पूरी दुनिया परेशान है. एग्जैक्टली. जी. पूरी दुनिया परेशान है. सॉल्यूशन क्या है कि बच्चे हों या बड़े हों, थोड़ा सा उनको जागरूक किया जाए, थोड़ा सा उनके अंदर अवेयरनेस डाली जाए कि नहीं आप तो, मतलब क्योंकि जरूरत तो है उसकी, बिल्कुल जी, लेकिन इतनी भी जरूरत नहीं है कि आप उसके बिना काम नहीं कर सकते. बिल्कुल जी. तो कुछ अवेयरनेस के लिए आप बताइए कैसे अवेयर कर सकते हैं. अवेयरनेस बेसिकली प्रिवेंशन कैसा करना है वो हमें पहले सोचना है, लेकिन प्रिवेंशन इट्स अगेन एज आई सेड यू इट्स अ रेवोल्यूशन, बिकॉज बहुत से बार पेरेंट्स दे डिस्कस द सेम प्रॉब्लम व्हेन वी आस्क देम टू कट डाउन द फोन ऑफ योर चाइल्ड, फोन एक्टिविटीज ऑफ द चाइल्ड, तो वो बोलते हैं कि बहुत से बार देयर आर टू रीजंस. वन इज nowadays most of the schools have also given started their education on online पे ही हो गया है. This ये COVID के बाद इनफैक्ट ये काफी ज्यादा हो गया है इनफैक्ट एक्चुअली. So that's one excuse they have, and second excuse is like children they are हो ही जाता है, मतलब कार्टून्स भी ऐसे exactly they are more attracted towards वो हो गया है, and they can't spend outdoor activity nowadays because of the congested spaces what we have now. So घर में रहते हैं तो we what we have to do. अभी फैमिली, बड़ी फैमिली में नहीं रहना चाहते, छोटी फैमिली में छोटे अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं, तो वो भी एक वजह होती है कि बच्चे जो है उसी में एक्टिविटी कर रहे हैं, बाहर नहीं जा पाते. बिल्कुल. एंड द थिंग कैन स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल्स में, अगर इफ दे कैन टेक कॉल की अगर नहीं हमें ओल्ड स्टाइल ऑफ टीचिंग में जाएं, जहां आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंट्रीज दे हैव स्टार्टेड shifting back to their textbooks style of learning actually, rather than on screen computer based learning. Some countries have started in fact. So that will decrease the stress on the child. And second thing, encourage the children to have outdoor activity. और बड़े लोग कैसे सॉल्व, मान लें बच्चों को तो ठीक है,
एजुकेशन हम्म, आप कह रहे हैं कि जो सिस्टम अभी चेंज हुआ है Fine, ऑनलाइन fine. का, वो चेंज होना चाहिए, Fine. पहले की तरह होना चाहिए। फाइन। बड़े लोगों को कैसे अवॉइड कर सकते हैं कुछ? एल्डर्स अगेन डिफरेंट, ये कैटेगरीज अलग हो जाती है ऐसी। एल्डर्स में अगर हम देखते हैं तो अगर पीपल हु आर वर्किंग, हु आर इनटू बिजनेस, अब उनके लिए मस्ट हो गया है एक्चुअली, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस आर नाउ व्हेन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, बिजनेस डीलिंग्स हैव बीन डन ऑन द फोन एक्चुअली। तो ठीक है, दैट हमें जहां तक रिक्वायरमेंट है वो करके, बाकी टाइम बेटर नॉट टू स्पेंड ऑन मोबाइल और स्मॉल स्क्रीन, अगर ये एक हो जाता है। एंड सेकंड चीज, एल्डरली पीपल, इफ यू थिंक एल्डरली पीपल, आजकल बहुत से एल्डरली पीपल like they are, instead of watching the serials or watching the series or anything on the big screen, web series, people are very crazy जी about जी, web series. they are watching, they are preferring to watch on the phone actually. तो I would request if they can just shift to the bigger screen and just आपको जो बेसिक रिक्वायरमेंट फोन पे जो है उसको फोन कैसा इस्तेमाल करिए आप। थोड़े माइनर चीज जो बिजनेस डीलिंग्स है वो करिए, बट अगर आप सीरीज भी उस पे देखना है, आपको न्यूज भी उस पे देखना है, एंड आपको स्पोर्ट्स भी उसी पे देखना है, तो यू आर मिसिंग समथिंग, सम एंटरटेनमेंट ऑन द बिगर पार्ट, बिगर स्क्रीन। स्क्रीन से प्रॉब्लम है, लगातार देखने से प्रॉब्लम है, या स्क्रीन से कुछ ऐसे चीज आती है जो आंखों को प्रभावित करती है, क्या वजह है? मैं आपको थोड़े बेसिक्स में ले जाता हूँ आईज के लिए, डिटेल्स पे। या फाइन, बेसिकली क्या होता है, हमारी आई का जो एनाटॉमी रहता है, आई में कॉर्निया, द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर कॉर्निया, जैसे हम ब्लैक बोलते हैं, एक्चुअली इट्स अ ट्रांसपेरेंट वन, जो हम ब्लैक जो गोल दिखता है, एंड दैट इज वेरी डेलिकेट रहता है, वो काफी डेलिकेट रहता है, एंड दैट्स अ मेन सोर्स जहां से आपका रेस, आपका विजन इज बीइंग फोकस्ड टू द रेटिना एंड टू द ब्रेन, कम्युनिकेटेड टू द ब्रेन एक्चुअली। तो इसको काफी मॉइस्ट रहना जरूरी है कॉर्निया को। तो गॉड हैज गिवन like some structures, like there are some glands in the eyelids हमारे पलक रहते हैं, eyelids में some glands are there, जो क्या होता है, they secrete some lipid secretions which helps in keeping the eyes moist. तो जब भी हम आंख को ब्लिंक करते हैं, ब्लिंक करे जब, हमारे आई के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होके दे पुश आउट द सेक्रेशंस फ्रॉम द ग्लैंड्स ऑन द आई, और जब भी हम आंख ओपन करते हैं, इट फॉर्म्स अ लेयर एक्चुअली, तो दैट हेल्प्स इन कीपिंग आवर कॉर्निया मॉइस्ट। लाइक सो दिस शुड हैपन नॉर्मली 16 to 18 टाइम्स पर मिनट एवरेज ब्लिंकिंग हमारी होनी चाहिए, जिससे कि हमारी आईज मॉइस्ट रहती है एंड विजन इज क्लियर, देयर इज नो स्ट्रेस ऑन द आईज। बट नॉर्मली क्या हो जाता है, हम कोई चीज को कॉन्सेंट्रेट करके देखते हैं तो हमारी ब्लिंकिंग का रेट कम हो जाता है, फ्रॉम 16 इट कम्स टू 10 टाइम्स और 8 टाइम्स। तो दैट कॉजेस हमारा टीयर फिल्म को ड्राई कर देता है, वो जल्दी मॉइस्चराइज जो होना है वो नहीं हो पाता है, उससे पेशेंट को, पर्सन को वाटरिंग होना है, रेडनेस होना है, यहाँ के जल रही है, बर्निंग सेंसेशन बोलते हैं, तो वो एक होता है। तो इसलिए द पर्सन शुड फॉलो बेसिक इंस्ट्रक्शंस ऑफ रिपीटेडली ब्लिंकिंग देयर आईज पर्पसफुली ब्लिंक करना चाहिए, जिससे आपका सेक्रेशंस प्रॉपर्ली कॉर्निया पे स्प्रेड हो एंड द आईज आर मेंटेन वेल। दिस इज वन थिंग। एंड सेकंड थिंग, हम जब कोई चीज को गौर से देखते हैं तो हमारे मसल्स गेट्स कॉन्ट्रैक्टेड, सो फॉर दैट प्लीज टेक ए ब्रेक। We call it as 20-20-20 formula, where every 20 minutes we ask the person, आप 20 फीट की दूर की चीज एक 20 सेकेंड्स देखिए। तो उससे क्या होता है, स्ट्रेन कम होता है, पेशेंट को आई पेन कम होता है, हेडेक कम होता है, and patient will feel relaxed. And there are some other protective measures like wearing good anti-fatigue glasses and putting lubricating eye drops. So there are other things also. There are we have good anti-fatigue glasses also. Anti-fatigue original like means there are lots of qualities in that one. Better to prefer a good aspheric anti-fatigue glasses and follow these instructions. Drink lots of water and जितना हो सके अपने कोशिश करिए कि स्क्रीन टाइम जो जितना जरूरत है उतना ही फोकस करिए। सर, एक हेल्दी आंख जी जी कितनी दूर तक देख सकती है?
और एक अनहेल्दी आंख कितनी दूर तक देख सकते Fine. It's slightly difficult this one, but definitely normal person can see जहाँ तक वो दूर तक देख सकते हैं. I think जहाँ तक उनका reach हो देख सकते हैं. कोई किलोमीटर या कुछ I think I'm not sure, but definitely जैसा हम लोग क्लिनिक पे भी कैलकुलेट इन द बेसिस ऑफ 10 फीट के डिस्टेंस पे जो हम लोग चार्ट विजन पढ़ाते हैं, बट आई थिंक नथिंग मोर देन आई थिंक इवन पर्सन शुड बी एबल टू सी क्लियरली टिल 500 meters डिस्टेंस आल्सो. आई थिंक सो डेफिनेटली डेफिनेटली हेल्दी आंखें. और अनहेल्दी आंख जब कैसे पता चलता है कि अनहेल्दी हो रही है? क्योंकि देखने में तो जब लगता है कि हम आंख तो तभी पता चलता है ना कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. जी. कब पता चल वो उसमें आप लोग के हिसाब से कैसे आप लोग कर पाते क्लियर कर पाते हैं कि अभी अनहेल्दी लाइक बेसिकली इसमें दो चीज होती है. अगर पेशेंट्स जब कंप्लेन लेके आते हैं, जैसा स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमको क्लासरूम में देखना मुश्किल होता है, बोर्ड पे टीचर्स का कंप्लेंट्स आता है कभी कि योर चाइल्ड इज नॉट डूइंग वेल इन द सब्जेक्ट्स, एक बार आई चेकअप करा लीजिए. तो दैट इज वन क्लू. सेकंड क्लू, अगर आप इफ अ चाइल्ड एट योर होम इफ इज वाचिंग रिपीटेडली टीवी, नजदीक जाके देख रहे हैं, हम उनको पीछे बिठा रहे हैं, फिर भी अगेन इफ दे गो एंड सिट इन द फ्रंट, सो दैट्स आल्सो एन इंडिकेशन कि हाँ एक बार चेकअप करा ले, बेटर रहेगा. एंड elderly people में अगेन मोस्ट ऑफ द टाइम दे कम विद अ कंप्लेन कि सर हम टीवी पे जो नीचे स्क्रोलिंग हो रहा है वो नहीं देख पा रहे हैं. सो दैट्स आल्सो वन इंडिकेशन कि हाँ भाई डेफिनेटली देयर इज सम प्रॉब्लम. तो वी मेक देम देयर इज अ प्रोटोकॉल वेयर विजन टेस्टिंग होता है क्लिनिक पे, हॉस्पिटल में. कभी होता है कि नजदीक की चीजें नहीं दिखती हैं. बिल्कुल जी. किसी को दूर की चीजें नहीं दिखती. फाइन. तो नजदीक जो नहीं दिखता है, कहते हैं कुछ लोग, जैसे बातचीत होती है तो कहते हैं कि आंख खराब हो रही है, 40 के ऊपर जब होता है तो वो एज का इफेक्ट होता है. बिल्कुल सही है. दैट इज कॉल्ड प्रेसबियोपिया बोलते हैं हम. आफ्टर द एज ऑफ 40 हमारे जो आई मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं थोड़े से, सो दे वोंट बी एबल टू फोकस. जैसा एक नॉर्मल पर्सन शुड बी 40 तक आप यहाँ तक देख सकते हैं, और 40 के बाद ऐसा हो जाता है कि आपको इतना नजदीक नहीं देख पाते. यू हैव टू टेक लिटिल बैक. फिर अगर आप कुछ नहीं पहन रहे हैं ग्लासेस, इफ यू आर नॉट टेकिंग हेल्प ऑफ एनीथिंग, देन यू हैव टू, आप नजदीक नहीं ले सकते हैं, उसको दूरी रख के पढ़ना पड़ता है. सो इट्स अ कॉमन फिनोमेना, इट्स नेचुरल एंड यू नॉट वरी अबाउट दैट. आफ्टर 40 किसी को 42 में रिक्वायरमेंट रहता है, किसी को 38 में भी रिक्वायरमेंट रहता है, बट 40 इज एन एवरेज वी टेक. 40 से 55 तक एवरी 2-3 इयर्स में इनका पावर चेंज होता है, रीडिंग पावर चेंज होता है. सो बहुत से बार मिथ होता है, हम पेशेंट्स कभी बोलते हैं कि भाई यू कैन स्टार्ट वेयरिंग दिस ग्लासेस, दे टेल कि सर वी आर एबल टू मैनेज. वो काफी स्ट्रेस करके देखते हैं, बट आई थिंक दैट्स नॉट राइट एक्चुअली, क्योंकि हम नंबर पहनेंगे तो भी बढ़ेगा, नहीं पहनेंगे तो भी बढ़ेगा. तो इट्स बेटर wear and see the things clearly and less strain on the eyes. सर ये रेटिना का क्या है आंख के लिए? जो कितना रेटिना, यानी हिंदी में उसको हम पर्दा, आंख का पर्दा. जी. तो इसका कितना खराब होना, इसका क्या इफेक्ट कैसे होता है? Like see in a simple अपने लैंग्वेज में हम देखते हैं तो it's a screen actually. जैसे हम थिएटर में मूवी देखते हैं, प्रोजेक्टर से जब स्क्रीन पे इमेज गिरता है तो स्क्रीन एकदम अच्छा रहे तो यू विल बी एबल टू अप्रिशिएट द थिंग्स क्लियरली. इन द सेम वे हमारा रेटिना एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां से इट्स अ वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर इन फैक्ट, एंड फ्रॉम वेयर द मैसेज इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू द ब्रेन, इट्स एन आइडेंटिफिकेशन एरिया जहां से हमें ब्रेन को कम्युनिकेट होता है कि हाँ भाई दिस आर द थिंग, दिस आर द इंफॉर्मेशन बोल के. सो मेंटेनिंग रेटिना अगेन इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग. रेटिना के लिए बेसिकली नॉर्मल पर्सन विथ हाई मायोपिया, जिनका नंबर ज्यादा होता है, दे हैव टू बी लिटिल केयरफुल. और पीपल विद डायबिटीज, दे हैव टू बी मोर केयरफुल ऑफ दैट. एटलीस्ट इनिशियल 1-2-3 years के ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज के बाद दे शुड एटलीस्ट गेट चेक देयर आईज 6 months में एक बार प्रॉपर चेक कराना चाहिए वो लोग. पीपल विथ हाइपरटेंशन, पीपल विथ ग्लोकोमा, मेनी अदर डिसीजेस आर देयर. क्योंकि रेटिना में जो डैमेज होता है इट्स एन इरिवर्सिबल डैमेज. एक बार जो डैमेज हो गया है हम उसको आगे कुछ नहीं कर पाते, तो वी हैव टू बी मोर केयरफुल इन सच डैमेजेस. ये मोतियाबिंद का क्या है, कब इसकी शुरुआत होती है, और क्या मतलब उसका तो ऑपरेशन या लेंस, आजकल तो लेंस जी. लेकिन कुछ बचाव करे अगर तो उससे नहीं फायदा हो सकता है? नहीं, फ्रैंकली नहीं होता है. बेसिक इट्स कैटरैक्ट अगेन इज एन एज प्रोसेस.
एज प्रोसेस जहाँ पर आपका लेंस जो है ट्रांसपेरेंट रहने से वो ओपेक हो जाता है, जिससे आपके बाहर का जो रेस है that's not being communicated to the brain again. तो पेशेंट को, पर्सन को देखने में प्रॉब्लम होता है। यानी आंख हमारी एज के साथ साथ बुढ़ी होती जाती है। बिल्कुल, तो अगर आप प्रॉपर ध्यान देते हैं तो थोड़ा आई थिंक यू कैन प्रोलॉन्ग, यू कैन एक्सटेंड द वीकनेस ऑफ द आई। सर, आंखों को सुरक्षित रखने के लिए करें क्या क्या कुछ जैसे अभी गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। बिल्कुल, जी जी गर्मी जी, में तो और आंखें जलती हैं, बाहर निकलो बिल्कुल बिल्कुल सूर्य भगवान को बर्दाश्त नहीं कर पाती है आंखें। बिल्कुल। तो ऐसे में गर्मी के मौसम में कैसे इसको सुरक्षित रखेंगे? बेसिकली अगेन इट्स सेम थिंग, हमारे मेन टीयर फिल्म का ही प्रॉब्लम आता है, जो आंख, उसका ही वही चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड बोथ आर नॉट गुड फॉर द आईज एक्चुअली। तो अब समर में यूजुअली क्या हो जाता है, हम बाहर आउटडोर एक्सट्रीम हीट है बोल के हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम विजिट इंडोर्स, एंड आपका जो एसी का जो आई थिंक कूलिंग जो है, यू ब्रिंग इट टू अ वेरी लो वन, तो उसमें यू आर इन एक्सट्रीम कूल एक्चुअली। सो ये दोनों चीजें आपको क्या होती है, आपके टीयर फिल्म्स को एवापोरेट करती है ये। तो बेसिकली द बेस्ट थिंग इज कीप ब्लिंकिंग योर आइज, कीप ब्लिंकिंग योर आइज, डिक्रीज जितना हो सके अपना स्क्रीन टाइम थोड़ा कम करिए, और आउटडोर एक्टिविटी में यू कैन वेयर सम, या आई विल कम टू दैट डेफिनेटली। आउटडोर एक्टिविटीज में यू कैन वेयर सम प्रोटेक्टिव ग्लासेस, यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस रहते हैं, गुड क्वालिटी यूवी प्रोटेक्टिव ग्लासेस, एंड along with the anti glare type में। And coming to food part में there's like there's a green leafy vegetable, carrot, milk, egg, fish. These are all good sources of vitamin A, which helps in keeping our eyes healthy. Along with I think flax seeds also helps a lot, because it provides omega fatty acids, so that helps in forming tear film again better, and it also keeps your even the lens and the retina also healthy actually long run mein. So these are few things I think definitely. And one important thing forgot to say, don't keep on washing your eyes frequently, because हमें आदत है कि हम eyes ज़्यादा wash करते हैं बहुत से बार, but please don't do that, क्योंकि उससे we are washing off हमारा natural tears है, उसको wash off कर दे रहे हैं हम। So better not to repeatedly wash your eyes. एक दो बार करे तो fine, that's fine. सर, ये बार बार जो आंख फड़कती है, ब्लिंक करती है, फिर वो आप कह रहे हैं कि ब्लिंक ज्यादा करनी चाहिए 16 टाइम्स, या 16 to 18 एवरेज। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अनवांटेड, उसको काउंट भी नहीं कर सकते, बार बार बिल्कुल बिल्कुल। उसका रीजन क्या है? क्या आंख खराब होती है, या फिर जो एक मिथ है लोगों में कि अच्छा होने वाला है तो दाई आंख फड़कती है, बुरा होने वाला है तो सब, मतलब ऐसा होता है ना कि ये आंख फड़कती है, तो उसमें कितनी सच्चाई है, या फिर क्या आंख खराब हो रही है इस वजह से फड़कता है? नहीं, बिल्कुल मिथ तो है, लेकिन मिथ, बट इट्स अ मिथ, बट सी वी कांट ब्रेक समवन्स ट्रस्ट ट्रेडिशन। बट बेसिकली जो आंखें जो रिपीटेड ब्लिंक हो रही है ना, दैट्स अगेन ए नेगेटिव दिस वन एक्चुअली फॉर आईज। या फॉर आईज, मतलब इट्स एन इंडिकेशन कि आपकी आईज आर बिकमिंग पोरर, your eyes are becoming weaker, you are spending more time on your screen, you are not taking proper precautions, you are not मतलब many things, मतलब precautions in the sometimes हम बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं टेंशन में, तब भी हमारी आंखें ऐसे फड़कने लगती है, जैसे मुझे फील हुआ है। तो yeah, definitely, even that stress and this one will have an effect on that one. Stress तो सभी चीज पे effect होता है basically. So basically हमें we should have a stressful life I think, and stressful life है जितना टाइम हम स्पेंड कम कर सके ऑन द स्क्रीन कम करना है। एंड अगेन इट्स कमिंग टू द सेम थिंग, स्क्रीन टाइम कम करना है, स्क्रीन टाइम कम करना है, प्रिकॉशंस प्रॉपर लेना है, and have good nutrition diet of you should have good source of vitamin D, vitamin all B, all these things. ज्यादा ब्लिंक कर रही आंखों को रोकने के लिए कुछ मेडिसिन भी हैं, या ऐसे ही बस वो ड्रॉप डाल सकते हैं? Yep, and basically along with the precautions again I stress, you can put eye drops often and have good diet. This is very important, and wear some good. कोई मेडिसिन नहीं इसके लिए, पर्टिकुलर मेडिसिन कोई? नहीं, again same lubricating eye drops, and we usually advise them to go for if it's like we give some multivitamin tablets हम लोग देते हैं, multivitamin course, not very frequently,
एंड अनटिल अनलेस फिर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो बेटर टू कॉन्टैक्ट वी गो इन फॉर फर्दर डिटेल एग्जामिनेशन टू रिफ्रैक्टिव एरर है क्या देखना है उनको, एंड दे कैन वेयर सम गुड प्रोटेक्टिव ग्लासेस एंड दे कैन से टेक प्रोटेक्टिव मेजर्स इन द प्लेस वेयर दे आर वर्किंग, लाइक गुड लाइट इल्यूमिनेशन है, decrease repeated breaks है, this will definitely help. सर कहा जाता है जैसे कि बिना स्लीपर के अगर सुबह आप घास पे चलते हो हाँ तो वो आंखों के लिए फायदा होता है कि ये सच है? ये डेफिनेटली हम काफी सुने हैं इसके बारे में, डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स कहते हैं बिल्कुल अक्सर, बिल्कुल डेफिनेटली इट्स सम वे it's helpful for the complete body, not only for the eyes. I feel so. At least उस बहाने हम लोग बाहर निकलते हैं, we keep walking, we get exposed to the environment. बिना स्लीपर, विदाउट स्लीपर ना ऐसे तो दौड़ने के लिए जाते हैं पूरा शूज वगैरह में पूरा जी लेकिन हेल्दी आंखों के लिए लोग कहते हैं कि बिना स्लीपर हरी जो घास है सुबह का वो जो ओस पड़ा रहता है, आपको पता ओस बिल्कुल जी वो पड़ा रहता है, तो उस पे चले तो आंखें हेल्दी होती हैं। तो आप डॉक्टर के हिसाब से कैसा ये सही है या फिर बस एक अनुमान है लोगों का? नहीं, it's very difficult to मतलब आंसर दिस एक्चुअली, बट बेसिकली मेन क्राइटेरिया ये है कि हम अर्ली मॉर्निंग का जो सनलाइट एक्सपोजर है दैट्स हेल्पफुल फॉर विटामिन डी फॉर्मेशन, ये सब चीजों के लिए। तो एंड अर्ली मॉर्निंग हरी घास इसलिए बोलते हैं कि ओस का इसलिए बोलते हैं कि वो अर्ली मॉर्निंग पे आपको जो उसका जो अवेलेबिलिटी रहता है वही टाइम पे रहता है। सो एटलीस्ट ड्यूरिंग यू कैन स्पेंड सम टाइम, मतलब आप एग्जैक्टली नेचर के साथ अपने हेल्थ के लिए कुछ टाइम स्पेंड करिए, बस दैट्स द मेन क्राइटेरिया एंड दैट्स रियली हेल्पफुल फॉर द कंप्लीट बॉडी, नॉट ओनली फॉर द आईज। आई थिंक सो डेफिनेटली आप उससे वॉक कर रहे हैं, वॉक करने से it's helpful for the muscles, it's helpful for your blood circulation, for the heart circulation, everything. I think so. Definitely we should follow some of these old traditions, definitely. सब जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए फिश भी लोग शायद कहते हैं कि आँख के लिए जी 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 और कौन से जैसे फिश, उसके बाद और क्या क्या ऐसा है जो आंखों के लिए सही है नॉनवेज? I'm not sure, sorry. I think it's fish है, other sources I don't know, sorry, I don't know. What about vegetarian? जो vegetarian उनके लिए तो आपने बता ही दिया कि कैरेट, जी 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 all this कैरेट है, green leafy vegetable है, कैरेट है, milk है, and then like even like all green leafy vegetables definitely. And again I stress on the flax seeds, that मतलब काफी that's helpful, and I think it's better to have diet of all the nutrients in a proper proportionate way. ऐसा because of the revolution जो हुआ है अभी पिछले कई सालों में, IT का जो ये है, and children spending that more time on the phone, family members spending more time on the phone, मतलब life has got almost, this has become a part of the so I think now it's our duty to take proper care of the eyes because of सर क्योंकि आज के जमाने में nowadays this is not the solution that हम फोन को दूर रहे हैं या फिर कंप्यूटर से दूर रहे हैं, बिकॉज उसके बिना तो काम ही नहीं पता, डेफिनेटली काम ही नहीं हो सकता है। तो फिर अगर ये कह दिया जाए कि मैंने एक अभी कुछ दिन पहले शायद ऑस्ट्रेलिया है या कोई कंट्री है जहाँ पे, मैं श्योर नहीं हूँ कंट्री के नाम के बारे में, वहाँ पे एक कानून बना है कि 8 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे शायद, हाँ मैंने भी पढ़ा है डेफिनेटली, 16 साल के बच्चे अगर देखेंगे तो उन पे कानूनी कार्रवाई। बिल्कुल जी 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 जी। लेकिन ठीक है, इसे अगर हम, कई लोग बोल भी रहे थे कि अदर कंट्रीज में, हमारी भी कंट्री में होनी चाहिए, लेकिन ये सोल्यूशन है क्या? नहीं सोल्यूशन तो अगेन इट्स डिफिकल्ट एक्चुअली। अगर हम कानून लगा भी देते, आज तो हमारे देश में बहुत सारे क्राइम है जिस पे कानून तमाम तरह के, लेकिन क्या वो क्राइम रुक रहे हैं? नहीं रुक रहे। नहीं देखिए अल्टीमेटली मैम, देखिए मैम बेसिकली क्या होता है, अभी सिचुएशन ऐसा है कि आपके सामने सब चीज है। अभी सिचुएशन ऐसा है कि आपको जो चीज चाहिए, अच्छी बुरी सब चीज आपके सामने रखे सो है। सो आपको ये सोचना है कि मुझे कौन सी चीज को वो करना है। ये राइट है, ये अवेयरनेस इज इम्पोर्टेंट।
हर किसी को अपने बच्चे हो या फिर खुद से भी अवेयर रहो कि आपको आपके लिए राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, आपके लिए कितना जरूरी है, जी चाहे फोन हो, कंप्यूटर हो या बिल्कुल। जो चीजें भी हैं आजकल दुनिया में बिल्कुल। उपलब्ध है, वो कितना जरूरी है, आप उतना ही लो। बिल्कुल तो बिल्कुल बड़े लोग तो मान लो समझ सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल मुश्किल हो जाता है हाँ, डेफिनेटली। लेकिन कानूनन अगर डंडा उन पे डाला जाए तो क्या बच्चे मान जाएंगे उससे? आई थिंक इट्स वेरी टफ एक्चुअली, बहुत मुश्किल है बिकॉज नथिंग, मतलब स्ट्रिक्ट एक्शन से करना मुश्किल है। ओनली थिंग इज वी हैव टू टेक देम इनटू कॉन्फिडेंस। हमें अपना पैटर्न ऑफ टीचिंग इन द स्कूल चेंज करना है। तो थोड़ा सा some changes to be done so that they not go to the phone. अभी उनके पास excuse अच्छा हो गया है, excuse नहीं, we can't say it's important भी है because sorry to it's not an excuse, sorry, but teachers मतलब उनका पूरा work आजकल phone पे ही आ रहा है, उनका जो भी है online पे ही वो हो जा रहा है. So again if they can shift back to the paper work जो पहले text books हम पढ़ते थे, if they can encourage in that way, तो उससे क्या होएगा, students का थोड़ा time phone पे कम हो जाएगा, they'll be more into the books. आपने जैसा पूछा है कि हाउ कैन वी कट डाउन मोबाइल का जैसा प्रिकॉशंस कैसा ले सकते हैं, बिकॉज उसको कैसा वी कैन व्हाट प्रिकॉशन शुड बी टेकन. अक्सर ऐसा हो जाता है कि हम लोग काम से आते हैं या वन वी कम बैक फ्रॉम वर्क, बच्चे जब स्कूल से आते हैं एंड एल्डर्स आर देयर एट होम फ्रॉम मॉर्निंग, तो वी कैन कम बैक, घर आके बाद वी कैन स्पेंड सम टाइम विद द फैमिली टुगेदर, साथ में बैठ के अपना डिनर करे या स्पेंड सम टाइम टुगेदर. तो एंड वी कैन कुछ डिस्कस करने से कुछ कोई भी चीज जो बच्चों को पसंद है, आस्क देम अबाउट देयर एक्टिविटीज, और उन्होंने क्या किया है स्कूल में, व्हाट इज देयर गोल, व्हाट इज एनकरेज देम इन मेनी वेज. इसमें क्या होता है, बॉन्डिंग बढ़ जाता है बच्चों से, फैमिली मेंबर से बॉन्डिंग बढ़ जाता है. उसके अलावा आपका माइंड जो ये चीजों में जो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, फोन देखने में जो चीजें which distracts your mind, वो भी थोड़ा कट ऑफ हो जाता है आपको, and your life will be more towards a positive approach. So I think we should spend more time with the family members, with your friends, along, like have a discussion, or you can play lots of indoor games are there like chess hai, caroms hai. You can spend good time with spending with over this one, and you can just जितना हो सके अपना whatever is required, you can watch some, you can give some time for the TV, not ऐसा नहीं कि हम 2-2 3-3 घंटे जब तक चल रहा है देख रहे हैं. स्पेंड उसको एक सिस्टम बना लीजिए, हाँ मुझे इतना देर टीवी देखना है घर आए बाद, उसके बाद बंद कर दीजिए. क्या आपको वो भी डिसाइड करना है. Exactly, that is very important. Definitely आपको क्या चाहिए. Definitely lots of I think again basically when you are with a family or when you are with someone, it's better to watch something good which is equally helpful for everyone, decent one, a disciplined one. Yes. सर ऐसा नहीं लगता है कि जो हमारी बॉडी है, जो हमारा कल्चर था, हमारा इंडिया का जो कल्चर है, वो जैसे कि होता है कि सुबह उठे, थोड़ा सा पूजा वूजा करे, थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव आए घर में, बच्चे भी उसके साथ आए, फिर उसके बाद थोड़ा खान पान, फिर ऐसे शाम तक फिर वो आए, फिर डिस्कशन करे, जैसा आपने कहा. हमारा वो कल्चर ज्यादा बेहतर था, जिसके घरों में आज भी अगर होता है तो उनकी फैमिली ज्यादा वो पॉजिटिव सोचती है और ज्यादा इन चीजों से दूर भी है. इसलिए उनका आंख भी सही है, उनका पेट भी सही है, उनका पैर भी सही है, उनका हेल्दी, दे आर हेल्दी, आई थिंक, एंड मेंटली दे आर आल्सो हेल्दी. लेकिन अभी क्या हो गया है कि देखने से, एक दूसरे को देखना है, फॉरेन कंट्री का जो भी कल्चर है हम उसे ज्यादा अपना लेते हैं. हमारे पास आईफोन होना चाहिए, ये बहुत बड़ा क्रेज है कि लगभग अगर आपकी सैलरी 30,000 है, 20,000 है, तो भी वो पर्सन आईफोन का व्यवस्था कर लेता है. जी. वो उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है. हमारे यहाँ जो अभी हो रहा है, ये कल्चर हो रहा है, तो अगर वो 50,000 का आईफोन खरीदेगा तो वो देखेगा ही ना, आईफोन कहाँ छोड़ के जाएगा. आप जी. आप उसको बताइए, थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए उसको. बेसिकली आई थिंक definitely it's very difficult, but हमें कोशिश यही करना है कि लाइफ में we should be happy with what we have. We should definitely enjoy every moment of life, every relation of our life. Definitely ये टाइम बार बार नहीं आता है. Spend time more with your family members, with your friends, with your known ones, with your well wishers. Definitely it will be very helpful. और अपना लिमिट
अपना whatever you are happy with, whatever you have, be happy. Don't compare yourself with anyone. Always be happy with what you have. Definitely, that is the best way of spending a peaceful life. I would request, definitely it's very difficult to be away from all these things, but at least कोशिश करना है कि हम ये चीज कम कर सके. और please take some preventive measures. What I had said earlier now, कि you can take care of your simple exercises, what we are told for your eyes, like repeated blinking and repeated relaxation of 20 minutes, 20 feet for 20 seconds, and some good protective glasses, which helps in really cutting off your stress when you work on the screen. They are called anti-fatigue glasses, बोल के आते हैं, good quality anti-fatigue glasses. This will decrease the stress over the tiny eye muscles. And when you are for outdoor activities like excessive exposure to sunrise, sunlays, you have good qualities of glasses where we can wear like we have like which cuts off the glare, actually anti-glare glasses, which cuts off glare, UV protective glasses बोलते हैं हम जिसे. So these are really helpful, because all this at the end of the day, end of your life, end of your few years, after few years, all this causes health issues actually, especially in the eyes. जैसे dryness होता है, pain होता है, headache होता है. Most of the patients, they complain with the complaint of headache, eye strain, and most of the IT people, like I'm really great. I really feel कि they are really great कि spending so much time in front of the screen. I usually get tired when I spend more than 15 to 20 minutes. मुझे थकान हो जाती है frankly, but I really appreciate people who sit for so much time. But I kindly request you, please take care of your eyes. They are very valuable organs of the body. क्योंकि I have seen people coming with so much stress, so much frustration and irritation कि हमारे आंखें burn हो रही है, headache हो रहा है, we are not able to concentrate on the work, and like that is disturbing my profession, and that is disturbing my progress of my profession. So I think basic precautions definitely follow करिए, and I think don't compromise on the quality of care for your eyes and for your health. बाकी सब चीज पे compromise करिए आप quality पे, but not for your body purpose, for your health purpose. Health is wealth. आप अच्छा रहेंगे तो अच्छा मेहनत कर पाएंगे, अच्छी progress होगी, you can earn a lot definitely. Everything is all interconnected, so please take care of your health, please take care of your eyes, take care of every organ of your body. We have seen the bad parts of the, very sad parts of the younger generation, which we can't really express, and we feel very bad if they have not taken care earlier. आज शायद वो काफी अच्छा रहते थे, क्योंकि better be early than being late. Please, I kindly request you all. Thank you. Please take care. सर का कहने का मतलब है कि जो हमारा इंडियन कल्चर है, जो हमारी फैमिली है, वही रहन सहन, हमें जो भी प्रॉब्लम है, चाहे फोन हो या जो भी अलग एटीट्यूड हो, जिससे हमारे हेल्थ, हमारी आंखें खराब होती हैं, उससे हम बच सकते हैं. सर बहुत बहुत धन्यवाद हेवी टीवी से जुड़ने के लिए और डिटेल में जानकारी. थैंक यू मैम, थैंक यू.